یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہوئے پا لیتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے اس لارڈس ڈے کے اوپر میں اس کلیسیا کا ایلڈر ہوتے ہوئے آپ سب کو ہیپی لارڈس ڈے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، اور آج ہم اس میں شاد ہوں گے کیونکہ ہم مسیح کے نام کی خاطر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جلال کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں زندہ خداوند کی ستائش کرتا ہوں۔ آج ہمارا جو کہ حوالہ ہے، آج ہم 11ویں باب کو ایک ہی گو میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو میں نے 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، ہمارے آیات ہے 16 تا 33 آیات ہم دیکھیں گے، تو یہ غالباً 17 آیات بنتی ہے، اور ان 17 آیات کی ڈویژن میں نے کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ 16ویں آیت سے لے کر کے 21ویں آیت تک، اور پھر 22ویں آیت سے لے کر کے 29ویں آیت تک، اور پھر 30ویں آیت سے لے کر کے 33ویں آیت تک۔ تو آج ہم اس حوالے میں سے جو چیز سب سے اہم میری نظروں کے سامنے سے گزری وہ یہ تھی کہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں خدا کا ساتھ اور خدا پر بھروسہ۔ دکھوں اور تکلیفوں میں خدا کا ساتھ اور خدا پر بھروسہ، یہ دو الگ چیزیں ہیں، خدا کا آپ کے ساتھ ہونا اور ہمارا خدا کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ دونوں الگ چیزیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں بھی ہوں، ہمیں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ خدا کی مرضی سے کیا ہو جی، باہر ہو۔ اور جب ہم اس بات کے ماننے والے ہیں کہ سب کچھ خدا کی مرضی ہی کے وسیلہ سے وجود میں ہے، قائم ہے، اور اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، خواہ ہم دکھ میں ہوں، خواہ ہم خوشی میں ہوں، خدا جس بھی حال میں ہمیں رکھتا ہے وہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ بنیادی مقصد کہ ہم خدا کے بڑے جلال کو کیا کر سکیں جی، بہترین طور پر سمجھ سکیں، اور نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کے اس جلال کے گواہ بھی ہو سکیں۔ اور مقدس پولس رسول کی زندگی کے اندر ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی کے دکھ، تکلیف، مسائل طرح طرح کے تھے، اور کرنتھیس کے 11ویں باب کے اندر مقدس پولس کا ایک جو بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خوشخبری کو کیا کر رہے ہیں جی، بگاڑ رہے ہیں، اور نہ صرف خدا کی خوشخبری کو بگاڑ رہے ہیں بلکہ مقدس پولس رسول کے اوپر مختلف طرح کے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ یہ تو جسمانی بدن کے طور پر کیا کرتا ہے جی، زندگی گزارتا ہے، خدا کے خادموں کے موافق یہ نہیں ہے، اور مقدس پولس کی خدمت کو وہ پارا پارا کرنے کی کیا کر رہے ہیں جی، کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مقدس پولس رسول جہاں پر لوگوں سے دکھ تکلیف پا رہا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ وہ اس نے خوشخبری کی خاطر سٹینڈ لیا ہے، اسی بات کے اندر وہ شرمندہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، کہتا ہے اگر تم لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے ہو تو بے وقوف ہی سمجھو، اور مگر میری بے وقوفی کو جس کی میں منادی کرتا ہوں اس منادی کو کیا کرو جی، قبول کرو۔ آئیے ہم 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرأت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بتھیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ آمین۔ مقدس پولس کہتا ہے کہ
تم لوگ بڑے سمجھدار بنتے ہو اور تم سمجھتے ہو، کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس دور میں، جس ٹائم کے اندر، جس ایرا کے اندر خداوند یسوع مسیح آئے تھے، وہ علم و فضل کے ترقی کا دور تھا، جہاں پر فلسفہ اپنی ترقی میں بہت ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور جہاں پر لوگ فلسفی نظریات کو مسیحیت کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، جہاں پر لوگ یہودیت کو مسیحیت کے اندر زبردستی ڈالنے کی کیا کر رہے تھے جی؟ کوشش کر رہے تھے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم افضل رسولوں میں سے ہیں۔ لیکن مقدس پولس رسول کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تم لوگ بڑے سمجھداری، اور یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کے اندر مقدس پولس طنزاً اس لوگوں کو بات کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی سپیچ ہوتی ہے تو کسی نہ کسی بات کے اوپر طنزاً اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر کیا ہو؟ چوٹ ہو، اور وہی صحیح بات اور صحیح حقیقت کی طرف ان کا چہرہ پھرے، ان کا رخ مڑے۔ اور مقدس پولس اس جگہ پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم لوگ سمجھدار ہی صحیح، میں بے وقوف، میں اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے بے وقوف سمجھتا ہے تو بے وقوف سمجھ کے ہی مجھے قبول کر لو، تاکہ جو چیز خوشخبری جس کا میں مناد ہوں، جو میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، اس کی قبولیت کو اور اس کے اثر کو اس کلیسیا میں دیکھ کر کے میں کیا کر سکوں؟ تھوڑا سا فخر کر سکوں۔ اور مقدس پولس فخر کس بات میں کرتا ہے؟ اور یہاں پر ہمیں خادم کا کردار بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی عزت سے بڑھ کر کے خدا اور خدا کے کلام کو لوگوں کی زندگیوں کے اندر بڑھتا ہوا، کام کرتا ہوا دیکھنے کا کیا ہے جی؟ خواہش مند ہے، اور یہی اس کا فخر ہے کہ خدا کا کلام لوگوں کی زندگیوں کی اندرونی شخصیت کے اندر کیا کر دے جی؟ اثر کر دے۔ آج ہمیں اسی بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس چھوٹی سی سٹیٹمنٹ کو ہم اپنے کانٹیکسٹ اور اپنے سیاق و سباق کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ آج کل ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جس دور میں سے بہت سے خدام اپنے خادم ہونے کے پریویلیج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی گاڑیاں، پھولوں کا ان کے اوپر پھینکا جانا، سٹیج کے اوپر بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ان کی انٹری ہونا کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور فلاں پی ایچ ڈی، اور اس طریقے سے۔ لیکن بہت مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ خدا کے کلام کو لے کر کے فیتھفل نہیں ہوتے، اور جب وہ خدا کے کلام کو لے کر کے فیتھفل نہیں ہوتے، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ زندگیوں کے اندر، اور اکثر بہت مرتبہ ہم نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ کلام کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہر کوئی اس کو اپنی ذاتیات کے اوپر لے جاتا ہے۔ بہت کم ایسا رویہ دکھنے میں آتا ہے کہ ہاں میری تفسیر بھی بہتر ہو سکتی ہے، میں بھی بہتر طور سے خدا کے کلام کو سمجھ کر لوگوں کو بتا سکتا ہوں، ہاں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی ولنریبل ہے غلطی کرنے کے، ہم میں سے ہر کوئی غلطی میں گر سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی فخر جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے کلام کی صحیح منادی میں ہونا چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی فخر کرنا چاہتا ہے تو مقدس پولس رسول کے فخر کرنے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی تمہارے درمیان میں کی ہے، اور اس بات میں میں کیا لیتا ہوں؟ فخر کرتا ہوں۔ فخر کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ ایسے فخر ہوتے ہیں جو کہ گناہ والا فخر ہوتا ہے، کچھ ایسے فخر ہوتے ہیں جس کے اندر ہم خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کا بچہ ترقی کرے، بہت اچھے نمبر لے کر کے آئے، تو آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے میرے بیٹے کے اوپر کے یا میری بیٹی کے اوپر کہ اس نے محنت کی، اور دیکھیں آج اس کو یہ کیا ملی ہے جی؟ کامیابی ملی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سینس ہے فخر کی، اور اسی کے مد مقابل ہمیں وہ فخر ملتا ہے جیسے کہ نبوکت نظر کیا کہتا ہے؟ مجھ نبوکت نظر نے یہ بڑا شہر بابل کیا کر لیا ہے جی؟ بنا لیا ہے۔ اب دونوں فخر کے اندر کیا ہے جی؟ فرق ہے۔
मुकद्दस पौलुस रसूल जिस चीज में फख्र ले रहा है वो इस चीज में फख्र लेता है। वो क्या कहता है? मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा क्या करूं जी, फख्र करूं, मुझे कबूल करो। और पौलुस जब यहां पर कह रहे कबूल करो तो इसकी हमें पूरे स्याको सबाक में समझने की जरूरत है, क्योंकि जो झूठे रसूल थे वो मुकद्दस पौलुस रसूल की सही रसूल और खादम होने के ऊपर उंगलियां उठाते थे और कहते थे कि ये तो जिस्म के तौर पर क्या करता है जी, जिंदगी गुजारता है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे दरमियान में रहा हूं और जो मैंने तुम्हारे दरमियान में मुनादी की है उसमें और मेरी जिंदगी के गुजारने के तरीके में कोई भी तजाद पाया नहीं गया। उसका फख्र इस चीज में है कि वो कोशिश में था, और इसीलिए तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानिद बनता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फख्र करता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। वो कहता है मैं मसीह के जैसे बनता चला जा रहा हूं, मेरे साथ उस दौड़ में शामिल हो जाओ, आओ हम मिल करके मसीह की मानिद बने। फिर जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं 17वीं आयत में कहते हैं जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावंद के तौर पर नहीं बल्कि गोया बेवकूफी से और उस जुर्रत से कहता हूं जो फख्र करने में होती है। जहां और बथेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं मैं भी करूंगा। अब वो जहां पर अब जिस्मानी तौर पर फख्र करने की वो बात कर रहा है, वो कहता है मैं इसलिए फख्र करूंगा कि खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने, मैं दुखों और तकलीफों में से भी गुजरा लेकिन जिस्मानी तौर पर मैं उन लोगों से ज्यादा फख्र कर सकता हूं जो महज लफ्जों के खादिम हैं, जो कि महज अल्फाज के खादिम हैं, सिर्फ लफ्जी तकरार करना जानते हैं। मुकद्दस पौलुस कहता है अगर जिस्मानी तौर पर ही फख्र करने की बात है तो मैं मसीह में होता हुआ जिस्मानी तौर पर ज्यादा फख्र कर सकता हूं। और अपने फख्र की बुनियाद वो अगली आयत में बताएगा कि मैं क्यों करके जिस्मानी तौर पर ज्यादा फख्र कर सकता हूं, क्यों वो ज्यादा जिस्मानी तौर पर फख्र कर सकता है। वो कहता है 23वीं आयत पे जरा आ जाइए, कहता है क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, खोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक काम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहरों के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्रों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। अब जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल की फिजिकल सफरिंग की बात करते हैं तो कहता है मुझे मसीह में अगर फख्र करने की बात हो तो मैं ज्यादा फख्र कर सकता हूं, क्योंकि मैं मसीह की खातिर इन दुखों और इन तकलीफों में से क्या हुआ हूं जी, गुजरा हूं। और वो क्यों गुजरा है? सिर्फ और सिर्फ उस अच्छी पाक और जलाली खुशखबरी की खातिर जिसको उस वक्त के लोग झुठलाने की और झूठा करार देने की क्या कर रहे थे जी, कोशिश कर रहे थे। और मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहे थे। और मुकद्दस पौलुस फिर भी खुदावंद में रहते हुए बड़ी हलीमी का मुजाहरा करते हैं। कहते ठीक है, वो जो मर्जी भी कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं बेवकूफ़ी से ही, लेकिन चाहत मेरी यही है इसी बेवकूफ़ी को कबूल कर, मुझे भी बेवकूफ़ समझ के कबूल कर। क्या वो हमें खूबसूरत एक प्लीड नजर आती है, एक दर्द नजर आता है एक खादिम के दिल के अंदर, खुदावंद के नाम की खातिर लोगों को उसकी सलीब के करीब लेकर के आए। आज इस दर्दमंदी की जरूरत है, आज इस चाहत की जरूरत है जिंदगियों के अंदर कि लोग खुदा के करीब आ जाए। और अगर आप नमूना देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह से बड़ा आजिज़ाना और खादिमाना नमूना हमें किसी और शख्सियत में नहीं मिलता। पौलुस रसूल भी यीशु मसीह के फुटस्टेप को, यीशु मसीह के नक्शे कदम को फॉलो करता है कि कैसा हमारा मसीहा था,
मसीह सफरिंग में से गुजरा, तकलीफ में से गुजरा, दुखों में से गुजरा, लेकिन सलीब पर मसीह के अल्फाज हमें क्या नजर आते हैं? ऐ बाप इनको माफ कर। क्यों? मिट्टी आलूदा होती है, गर्द आलूदा होती है, और लोगों के पीछे स्लाइड करने की जो वजह होती है वो कलाम और कलाम की इग्नोरेंस होती है। आप लोग अपने आप को करंथिस की कलीसिया से कुछ बेहतर हरगिज मत समझिए। मैं और आप, हम सब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पर आसानी के साथ गिर सकते हैं, बैकस्लाइड हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमें पता नहीं होता कि बाइबल हमें क्या कहती है, और बहुत मर्तबा लोग कल्चरल क्रिश्चियनिटी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, रस्मी मसीहत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर हम अपनी इज्जत बेइज्जती को बहुत अफजल समझते हैं, और फिर उसके अंदर क्या होता है? प्रेयर मीटिंग्स पे लोग नहीं आते क्योंकि वो समझते हैं कि मैं रूहानी हालत में अफजल हूं। बाइबल स्टडीज पे लोग नहीं आते हैं, वो समझते हैं कि रूहानी हालत में मैं अफजल तरीन मकाम के ऊपर हूं। लोगों के अंदर माफी की सख्त कमी होती है, लोगों के अंदर बर्दाश्त की सख्त कमी होती है। एक दूसरा शख्स हम पर इफेक्ट डालता है, और बिल्कुल ऐसा ही करंथिस की कलीसिया के अंदर हो रहा था। नफाक, दूरी, जुदाई, तफरका डालना। जाती जिंदगी के अंदर हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के ऊपर देखे कि हम किस जगह पर हैं, हम किस जगह पर किस किस कमी का शिकार है। हमें एक मौका चाहिए बैकस्लाइड होने का, और मुकद्दस पौलुस जिसने इतने अबवाब करंथिस की कलीसिया को लिखे, मुमकिन है कि बहुत से लोग करंथिस की कलीसिया में से भी बैकस्लाइड हो रहे होंगे, और उन लोगों की बातों में और उन लोगों की तालीमात के अंदर जो जुडाइजर्स हमें नजर आते हैं कि जो कि मसीहत को यहूदियत बनाने की क्या कर रहे थे जी, कोशिश कर रहे थे। इसीलिए तो मुकद्दस पौलुस कहता है कि कायम रहो, बर्दाश्त करो। मैं तुम्हारे दरमियान में रहा ताकि मैं भी थोड़ा सा क्या कर सकूं, फख्र कर सकूं। हर कोई चंद लम्हात के लिए गौर करे। हम लोग अगर एक तरफ हम करंथिस की कलीसिया को रखें, एक तरफ हम अपनी कलीसिया को रखें, हर कोई बैकस्लाइड कर सकता है, हर कोई बैकफॉल कर सकता है। जहां पर मसीहत अगर मूड्स के ऊपर डिपेंड करेगी, किसी भी शख्स के ऊपर जो कोई नई सी तालीम लेकर के आएगा और हम हवा के सहारे उछलते बहते फिरेंगे, ये बहुत खतरनाक बात है। मुकद्दस पौलुस ऐसे ही नहीं कहता। आइए मेरे साथ निकालिए गलतियों का खत, गलतियों का खत, उसका पहला बाब। क्या लिखा है? मुकद्दस पौलुस, मिट्टी आलूदा होती है, गर्द आलूदा होती है, और लोगों के पीछे स्लाइड करने की जो वजह होती है वो कलाम और कलाम की इग्नोरेंस होती है। आप लोग अपने आप को करंथिस की कलीसिया से कुछ बेहतर हरगिज मत समझिए। मैं और आप, हम सब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पर आसानी के साथ गिर सकते हैं, बैकस्लाइड हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमें पता नहीं होता कि बाइबल हमें क्या कहती है, और बहुत मर्तबा लोग कल्चरल क्रिश्चियनिटी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, रस्मी मसीहत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर हम अपनी इज्जत बेइज्जती को बहुत अफजल समझते हैं, और फिर उसके अंदर क्या होता है?
پریئر میٹنگز پہ لوگ نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں روحانی حالت میں افضل ہوں. بائبل سٹڈیز پہ لوگ نہیں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روحانی حالت میں میں افضل ترین مقام کے اوپر ہوں. لوگوں کے اندر معافی کی سخت کمی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر برداشت کی سخت کمی ہوتی ہے. ایک دوسرا شخص ہم پر ایفیکٹ ڈالتا ہے، اور بالکل ایسا ہی کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ہو رہا تھا. نفاق، دوری، جدائی، تفرقہ ڈالنا. ذاتی زندگی کے اندر ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے اوپر دیکھے کہ ہم کس جگہ پر ہیں، ہم کس جگہ پر کس کمی کا شکار ہے. ہمیں ایک موقع چاہیے بیک سلائڈ ہونے کا. اور مقدس پولس جس نے اتنے ابواب کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ کرنتھس کی کلیسیا میں سے بھی بیک سلائڈ ہو رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کی باتوں میں اور ان لوگوں کی تعلیمات کے اندر جو جوڈائزرز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو کہ مسیحیت کو یہودیت بنانے کی کیا کر رہے تھے جی، کوشش کر رہے تھے. اسی لیے تو مقدس پولس کہتا ہے کہ قائم رہو، برداشت کرو. میں تمہارے درمیان میں رہا تاکہ میں بھی تھوڑا سا کیا کر سکوں، فخر کر سکوں. ہر کوئی چند لمحات کے لیے غور کرے. ہم لوگ اگر ایک طرف ہم کرنتھس کی کلیسیا کو رکھیں، ایک طرف ہم اپنی کلیسیا کو رکھیں، ہر کوئی بیک سلائڈ کر سکتا ہے، ہر کوئی بیک فال کر سکتا ہے. جہاں پر مسیحیت اگر موڈز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی، کسی بھی شخص کے اوپر جو کوئی نئی سی تعلیم لے کر کے آئے گا اور ہم ہوا کے سہارے اچھلتے بہتے پھریں گے، یہ بہت خطرناک بات ہے. مقدس پولس ایسے ہی نہیں کہتا. آئیے میرے ساتھ نکالیے گلتیوں کا خط، گلتیوں کا خط، اس کا پہلا باب. کیا لکھا ہے مقدس پولس؟ بہت سی روحوں کو جیت کر تیرے قدموں میں لانے کا اسباب اور وسیلہ بنے خدا. بیٹھی ایک ایک جان کو تو چھو اور برکت دے اور اپنے لیے اپنے جلال کے لیے سدا استعمال کرتا رہے خدا. ان گرانوں کے اوپر، ان خاندان کے اوپر تیری بڑی برکت چاہتے ہیں خدا. تیرا فضل مانگ لیتے ہیں پہلے خدا، اور تو انہیں بڑی برکت دے خدا. ان کی روحانی جسمانی آنکھیں کھول خدا، باطن کی آنکھیں کھول پہلے خدا، تاکہ جب تیرا کلام کیا جاتا ہے تو خدا ہم تیرے کلام کو سنیں، سیکھیں، سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہوئے پانے کو ہیں، آمین. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کے اس لارڈس ڈے کے اوپر میں اس کلیسیا کا ایلڈر ہوتے ہوئے آپ سب کو ہیپی لارڈس ڈے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، اور آج ہم اس میں شاد ہوں گے کیونکہ ہم مسیح کے نام کی خاطر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے جلال کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میں زندہ خداوند کی ستائش کرتا ہوں. آج ہمارا جو کہ حوالہ ہے، آج ہم 11ویں باب کو ایک ہی گو میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو میں نے 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، ہمارے آیات ہے 16 تا 33 آیات ہم دیکھیں گے. تو یہ غالباً 17 آیات بنتی ہے، اور ان 17 آیات کی ڈویژن میں نے کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ 16ویں آیت سے لے کر کے 21ویں آیت تک، اور پھر 22ویں آیت سے لے کر کے 29ویں آیت تک، اور پھر 30ویں آیت سے لے کر کے 33ویں آیت تک. تو آج ہم اس حوالے میں سے جو چیز سب سے اہم میری نظروں کے سامنے سے گزری وہ یہ تھی کہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں خدا کا ساتھ اور خدا پر بھروسہ. دکھوں اور تکلیفوں میں خدا کا ساتھ اور خدا پر بھروسہ، یہ دو الگ چیزیں ہیں. خدا کا آپ کے ساتھ ہونا اور ہمارا خدا کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ دونوں الگ چیزیں. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں بھی ہوں، ہمیں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی کام،
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि खुदा की मर्जी से क्या हो जी, बाहर हो। और जब हम इस बात के मानने वाले हैं कि सब कुछ खुदा की मर्जी ही के वसीला से वजूद में है, कायम है और उसी की मर्जी से होता है, ख्वाह हम दुख में हो ख्वाह हम खुशी में हो, खुदा जिस भी हाल में हमें रखता है वो इसलिए रखता है ताकि बुनियादी मकसद कि हम खुदा के बड़े जलाल को क्या कर सके जी, बेहतरीन तौर पर समझ सके, और ना सिर्फ समझ सके बल्कि उसके उस जलाल के गवाह भी हो सके। और मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर हमें जो नजर आता है कि उसकी जिंदगी के दुख, तकलीफ, मसाइब तरह तरह के थे। और करंथिस के 11वें बाब के अंदर मुकद्दस पौलुस का एक जो बड़ा दुख है वो ये है कि वो लोग जो खुदा की खुशखबरी को क्या कर रहे हैं जी, बिगाड़ रहे हैं। और ना सिर्फ खुदा की खुशखबरी को बिगाड़ रहे हैं बल्कि मुकद्दस पौलुस रसूल के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात भी लगाते हैं कि ये तो जिस्मानी बदन के तौर पर क्या करता है जी, जिंदगी गुजारता है, खुदा के खादमों के मुआफिक ये नहीं है। और मुकद्दस पौलुस की खिदमत को वो पारा पारा करने की क्या कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल जहां पर लोगों से दुख तकलीफ पा रहा है सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो उसने खुशखबरी की खातिर स्टैंड लिया है, उसी बात के अंदर वो शर्मिंदा नहीं है। वो कहता है कि अच्छी बात है, कहता है अगर तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो तो बेवकूफ ही समझो, और मगर मेरी बेवकूफ़ी को जो जिसकी मैं मुनादी करता हूं उस मुनादी को क्या करो जी, कबूल करो। आइए हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूं। जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावंद के तौर पर नहीं बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूं जो फख्र करने में होती है। जहां और बथेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगर ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर हूँ। आमीन। मुकद्दस पौलुस कहता है कि तुम लोग बड़े समझदार बनते हो और तुम समझते हो, क्योंकि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस दौर में, जिस टाइम के अंदर, जिस एरा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आए थे वो इल्म व फजल के तरक्की का दौर था, जहां पर फलसफा अपनी तरक्की में बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा था और जहां पर लोग फलसफी नज़रियात को मसीहत के अंदर भी डालने की कोशिश करते थे, जहां पर लोग यहूदियत को मसीहत के अंदर ज़बरदस्ती डालने की क्या कर रहे थे जी, कोशिश कर रहे थे और ये जाहिर करने की कोशिश करते थे कि हम अफजल रसूलों में से हैं। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं चलो ठीक है, तुम लोग बड़े समझदारी, और ये जो हमने आयात पढ़ी है इसके अंदर मुकद्दस पौलुस तंजन उस लोगों को बात कर रहा है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई स्पीच होती है तो किसी न किसी बात के ऊपर तंजन इसलिए कहा जाता है ताकि लोगों के दिलों के ऊपर क्या हो, चोट हो और वही सही बात और सही हकीकत की तरफ उनका चेहरा फेरे, उनका रुख मुड़े। और मुकद्दस पौलुस इस जगह पर कहते हैं कि ठीक है तुम लोग समझदार ही सही, मैं बेवकूफ, मैं इस बात को मान लेता हूं, लेकिन अगर कोई मुझे बेवकूफ समझता है तो बेवकूफ समझ के ही मुझे कबूल कर लो, ताकि जो चीज खुशखबरी जिसका मैं मुनाद, जो मैं तुम्हारे पास लेकर के आया हूं, उसकी कबूलियत को और उसके असर को इस कलीसिया में देख करके मैं क्या कर सकूं, थोड़ा सा फख्र कर सकूं। और मुकद्दस पौलुस फख्र किस बात में करता है, और यहां पर हमें खादिम का किरदार भी नजर आता है कि वो अपनी इज्जत से बढ़ करके खुदा और खुदा के कलाम को लोगों की जिंदगियों के अंदर बढ़ता हुआ, काम करता हुआ देखने का क्या है जी, ख्वाहिशमंद है।
اور یہی اس کا فخر ہے کہ خدا کا کلام لوگوں کی زندگیوں کی اندرونی شخصیت کے اندر کیا کر دے جی؟ اثر کر دے۔ آج ہمیں اسی بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس چھوٹی سی سٹیٹمنٹ کو ہم اپنے کانٹیکسٹ اور اپنے سیاق و سباق کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ آج کل ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جس دور میں سے بہت سے خدام اپنے خادم ہونے کے پریویلیج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی گاڑیاں، پھولوں کا ان کے اوپر پھینکا جانا، سٹیج کے اوپر بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ان کی انٹری ہونا کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور فلاں PhD اور اس طریقے سے۔ لیکن بہت مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ خدا کے کلام کو لے کر کے فیتھفل نہیں ہوتے، اور جب وہ خدا کے کلام کو لے کر کے فیتھفل نہیں ہوتے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ زندگیوں کے اندر، اور اکثر بہت مرتبہ ہم نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ کلام کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہر کوئی اس کو اپنی ذاتیات کے اوپر لے جاتا ہے۔ بہت کم ایسا رویہ دکھنے میں آتا ہے کہ ہاں میری تفسیر بھی بہتر ہو سکتی ہے، میں بھی بہتر طور سے خدا کے کلام کو سمجھ کر لوگوں کو بتا سکتا ہوں، ہاں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی ولنریبل ہے غلطی کرنے کے، ہم میں سے ہر کوئی غلطی میں گر سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی فخر جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے کلام کی صحیح منادی میں ہونا چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی فخر کرنا چاہتا ہے تو مقدس پولس رسول کے فخر کرنے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی تمہارے درمیان میں کی ہے، اور اس بات میں کیا لیتا ہوں؟ فخر کرتا ہوں۔ فخر کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ ایسے فخر ہوتے ہیں جو کہ گناہ والا فخر ہوتا ہے، کچھ ایسے فخر ہوتے ہیں جس کے اندر ہم خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کا بچہ ترقی کرے، بہت اچھے نمبر لے کر کے آئے، تو آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے میرے بیٹے کے اوپر کے یا میری بیٹی کے اوپر کہ اس نے محنت کی، اور دیکھیں آج اس کو یہ کیا ملی ہے جی؟ کامیابی ملی ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سینس ہے فخر کی، اور اسی کے مد مقابل ہمیں وہ فخر ملتا ہے جیسے کہ نبوکت نظر کیا کہتا ہے؟ مجھ نبوکت نظر نے یہ بڑا شہر بابل کیا کر لیا ہے جی؟ بنا لیا ہے۔ اب دونوں فخر کے اندر کیا ہے جی؟ فرق ہے۔ مقدس پولس رسول جس چیز میں فخر لے رہا ہے وہ اس چیز میں فخر لیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بیوقوف نہ سمجھے، ورنہ بیوقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا کیا کروں جی؟ فخر کروں، مجھے قبول کرو۔ اور پولس جب یہاں پر کہہ رہے قبول کرو تو اس کی ہمیں پورے سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو جھوٹے رسول تھے وہ مقدس پولس رسول کی صحیح رسول اور خادم ہونے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو جسم کے طور پر کیا کرتا ہے جی؟ زندگی گزارتا ہے۔ پولس کہتا ہے میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، اور جو میں نے تمہارے درمیان میں منادی کی ہے اس میں اور میری زندگی کے گزارنے کے طریقے میں کوئی بھی تضاد پایا نہیں گیا۔ اس کا فخر اس چیز میں ہے کہ وہ کوشش میں تھا، اور اسی لیے تو مقدس پولس رسول کہتا ہے میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں مسیح کے جیسے بنتا چلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ اس دوڑ میں شامل ہو جاؤ، آؤ ہم مل کر کے مسیح کی مانند بنے۔ پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں 17ویں آیت میں وہ کہتے ہیں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرأت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بتھیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں میں بھی کروں گا۔ اب وہ جہاں پر اب جسمانی طور پر فخر کرنے کی وہ بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اس لیے فخر کروں گا کہ خدا کا شکر ہو کہ خدا نے میں دکھوں اور تکلیفوں میں سے بھی گزرا، لیکن جسمانی طور پر میں ان لوگوں سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں جو محض لفظوں کے خادم ہیں، جو کہ محض الفاظ کے خادم ہیں، صرف لفظی تکرار کرنا جانتے ہیں۔
मुकद्दस पौलुस कहता है अगर जिस्मानी तौर पर ही फख्र करने की बात है तो मैं मसीह में होता हुआ जिस्मानी तौर पर ज्यादा फख्र कर सकता हूं। और अपने फख्र की बुनियाद वो अगली आयत में बताएगा कि मैं क्यों करके जिस्मानी तौर पर ज्यादा फख्र कर सकता हूं। क्यों वो ज्यादा जिस्मानी तौर पर फख्र कर सकता है? वो कहता है 23वीं आयत पे जरा आ जाइए। कहता है क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, खोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक काम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहरों के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्रों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। अब जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल की फिजिकल सफरिंग की बात करते हैं तो कहता है मुझे मसीह में अगर फख्र करने की बात हो तो मैं ज्यादा फख्र कर सकता हूं, क्योंकि मैं मसीह की खातिर इन दुखों और इन तकलीफों में से क्या हुआ हूं जी, गुजरा हूं। और वो क्यों गुजरा है? सिर्फ और सिर्फ उस अच्छी, पाक और जलाली खुशखबरी की खातिर जिसको उस वक्त के लोग जुठलाने की और झूठा करार देने की क्या कर रहे थे जी, कोशिश कर रहे थे। और मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहे थे। और मुकद्दस पौलुस फिर भी खुदावंद में रहते हुए बड़ी हलीमी का मुजाहरा करते हैं। कहते ठीक है, वो जो मर्जी भी कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं बेवकूफ़ी सही, लेकिन चाहत मेरी यही है इसी बेवकूफ़ी को कबूल कर, मुझे भी बेवकूफ़ समझ के कबूल कर। क्या वो हमें खूबसूरत एक प्लीड नजर आती है, एक दर्द नजर आता है एक खादिम के दिल के अंदर, खुदावंद के नाम की खातिर लोगों को उसकी सलीब के करीब लेकर के आए। आज इस दर्दमंदी की जरूरत है, आज इस चाहत की जरूरत है जिंदगियों के अंदर कि लोग खुदा के करीब आ जाए। और अगर आप नमूना देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह से बड़ा आजिज़ाना और खादिमाना नमूना हमें किसी और शख्सियत में नहीं मिलता। पौलुस रसूल भी यीशु मसीह के फुटस्टेप को, यीशु मसीह के नक्शे कदम को फॉलो करता है कि कैसा हमारा मसीहा था। मसीह सफरिंग में से गुजरा, तकलीफ में से गुजरा, दुखों में से गुजरा, लेकिन सलीब पर मसीह के अल्फाज हमें क्या नजर आते हैं? ऐ बाप इनको माफ कर। क्यों? हमारी हलीमी और हमारी फरोतनी का मुजाहरा कहां से होता है? जहां से हम अपने दिल की आजिज़ी का इजहार जहां से करते हैं कि मेरे दिल के अंदर आज भी खुदा के कलाम को सीखने की तड़प और चाहत उसी तौर से दहकती है जिस तौर से मेरी इब्तदाई मसीहत के दिनों में थी। क्योंकि एक मसीही जो है वो खुदा के हाथों में एक काम है जिसको खुदा बना रहा होता है, और हमें अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। आपकी मसीहत मूड्स डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जुडाइजर्स आज इस कलीसिया के अंदर अभी नहीं है, हो सकता है हमारी कलीसियाई कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीजें थोड़ी सी और तरह की हो, लेकिन डिपिक्शन सेम हो सकती है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, हमें सोचने की जरूरत है कि कहां से हम गिरते हैं। खुदा खादिम पॉल वॉशर कहता है आदमी गिरता नहीं है, आदमी स्लिप करता है। और स्लिप हम कब करते हैं? स्लिप एकदम से नहीं होता, स्लिप आहिस्तगी के साथ और मतवातर होता है। जहां पर तो एक और खुदा का खादिम कहता है कि मैं जितना ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ता जाता हूं मुझे पता चलता जाता है कि मुझे कितना ज्यादा नहीं पता है। हमें इस बात के ऊपर रहना है कि हम
आज भी सीखने के अमल में से गुजर रहे हैं। और मुकद्दस पौलुस जहां पर बड़ी खूबसूरत एक बुनियाद डाल रहे हैं। फिर मुकद्दस पौलुस, फिर होता क्या है, बहुत मर्तबा बाहर से किसी को कोई बात करता है, फलां को कोई बात करता है, हम कहते हैं हाँ ये बात तो है। फिर हम असल में हमारे मेरिट्स का ही हमें नहीं पता कि हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। हमारे ईमान के सतून जो हैं वो क्या है, हमारे ईमान की बुनियादें क्या हैं, और उन बुनियादों के ऊपर हमने किस तरह से मजबूती से खड़े रहना है। यही वजह है। फिर हम वहां से बात सुनते हैं, जहां से बात सुनते हैं, और हम हवा के सहारे उछलते बहते हैं। हम कहते हैं फलां भी बुरा, फलां भी बुरा, फलां भी बुरा, फलां भी बुरा, सब बुरे हैं। ठीक है, सब बुरे हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर कामिल कलीसिया आपको किसी जगह पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन बात क्या है, बात यह है, आपको खुदा का खादिम पॉल वॉशर कहता है उस कलीसिया की तलाश ना करें जो कि आपके घर के करीब है, उस कलीसिया की तलाश कीजिए जो कि कलाम की सच्चाइयों के करीब है। हमें भी अपनी जिंदगियों के अंदर देखना है और ऐसी कलीसिया का इंतखाब करना है जो कि सच्चाई के करीब हो, जो कि आपको सच्चाई बयान करे। क्योंकि सच्चाई के वसीला से जिंदगी के अंदर क्या आती है जी, आज़ादी आती है। सच्चाई के वसीला से लोग कायम रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल उसी सच्चाई जो कि गॉस्पेल के अंदर है वो बयान करते हैं। और वो क्या कहते हैं, कहते हैं अब 19वीं आयत में है, क्योंकि तुम अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की बर्दाश्त करते हो। अपने आप को वो कह रहे हैं। अब इसके दो तरह से इसके मानी है। कहता है मुकद्दस पौलुस, ऊपर कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझ के ही क्या कर लो जी, कबूल कर लो। अब मुकद्दस पौलुस तंजन बात करते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत अक्लमंद हो, लेकिन इतने अक्लमंद हो कि खुशी से ही बेवकूफों की बर्दाश्त कर लेते हो। तो कहता है मुझे ही वो बेवकूफ समझो और खुशी के साथ मेरी भी बर्दाश्त कर लो और मुझे समझ लो और मुझे मान लो कि मैं तुम्हारे दरमियान में क्या लेकर के आया हूं। कहता है ठीक है, मैं बेवकूफ ही सही, लेकिन वो लोग जिनको तुम बहुत अक्लमंद समझते हो वो क्या करते हैं। 20वीं आयत में कहता है, जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। अब ये किन लोगों के बारे में बात कर रहा है मुकद्दस पौलुस? उन्हीं जुडाइजर्स के बारे में जो मसीहत को यहूदियत बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने बड़ी डिटेल के अंदर सीखा था। कहते हैं कि जब लोग तुम्हारी जिंदगियों के अंदर आते हैं और तुम्हें क्या बनाते हैं जी, गुलाम बनाते हैं। क्योंकि यहां पर हमें नजर आता है कि जुडाइजर्स जो थे वो दोबारा से उन्हें शरीयत की गुलामी के अंदर लेकर के जा रहे थे, बिल्कुल जिस तरह रबियों के लोग गुलाम होते थे। यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, तुम लोगों पर तो भारी बोझ डालते हो लेकिन खुद हल्का सा भी काम नहीं करते, लोगों को दया यकियों का बताते हो, तुम खुद वो काम नहीं करते, खुद तुम लोग सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि लोग तुम्हें गुलाम बनाते हैं या तुम्हें क्या करते हैं जी, खा जाते हैं या फंसा लेते हैं, या अपने आप को लोग तुम्हें क्या करते हैं, बड़ा बना करके दिखाते हैं, या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारते हैं तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। अब पौलुस की उस बात को दोबारा से देखें कि तुम खुशी के साथ बेवकूफ़ों की क्या कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो। अब मुकद्दस पौलुस पहले अपने आप को बेवकूफ़ कहता है, फिर कहता है कि तुम लोग तो अक्लमंद हो, तो अक्लमंद होते हुए बेवकूफ़ों की बर्दाश्त बड़ी खुशी के साथ तुम लोग क्या है जी, कर लेते हो। लेकिन तुम्हारे दरमियान में वही लोग हैं जो तुम लोगों को क्या बनाते हैं जी, अपना गुलाम बनाते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए, लोग कलीसिया का हिस्सा बने और फिर लोग कहते हैं हमें एक नया पादरी मिल गया है और वो नया पादरी वो हमारे लिए रो रो करके दुआएं करता है, और रोने वाला पादरी ने लूट करके ले गया लोगों को। और उसके बाद फिर वो लोग रो रहे थे कि हमारा रोने वाला पादरी हमें रुला करके और हमें लूट करके क्या हुआ है जी। जो मैं सच्चा वाक्य आपको बता रहा हूं, ये मजाक नहीं है। जोएल भाई को मालूम है, कुछ और भाइयों को शायद मालूम होगा, लेकिन मसला क्या है, मसला यहां पर यह है
کہ حقیقی دانش خدا کے کلام میں سے آتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ آج ہم نے زبور بھی گایا, میں تے رات دانش دا ملانگا. بائبل کہتی ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. تو جب بائبل ہمارے پاس ہے, بائبل ہمیں حقیقی دانش مندی بتاتی ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے ایمان کی بنیادوں کو اس کے مطابق مضبوط کریں. ہم اپنے ایمان کے جہازوں کو غرق نہ ہونے دیں, ورنہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسیح نے پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے, اور جو لوگ جاتے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ کلیسیا جو کہ مقدسوں کی جماعت ہے, خدا اپنے فضل کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو کیا رکھتا ہے جی؟ قائم رکھتا ہے. کیونکہ جو لوگ خدا کے علم سابق کے اندر, علم سابق سے کیا مراد ہے؟ خدا کے فور نالج کے اندر الیکٹ لوگ, خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ خدا اور خدا کے کلام سے محبت بھی کریں گے. اور خدا کے چنے ہوئے لوگ مختلف جگہوں کے اوپر ہیں. ہمیں محبت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے, اور محبت کا سب سے خوبصورت مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو ارج کریں کہ وہ خدا کے کلام کے قریب آئیں. لوگوں آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے, لوگوں کو یہ بلاہٹ دینا کہ بائبل کے قریب آ جاؤ. بس بائبل کے قریب آؤ, بائبل پڑھو, بائبل کے مطابق اپنی مسیحیت کی بنیادوں کو مضبوط کرو. مقدس پولس بھی یہی کر رہا ہے. اور ایک اور چیز, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہم بائبل کی طرف بلائیں لیکن ہماری ذاتی زندگی بائبل کے تضاد میں ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مقدس پولس فخر کرتا ہے تو وہ فضول میں فخر نہیں کرتا, وہ کہتا ہے مجھے بے وقوف سمجھ کے قبول کر لو. ہمیں نظر آتا ہے پولس کہتا ہے میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں, تم میری سفرنگ سے بھی واقف ہو, تم واقف ہو کہ میں نے کس طور سے تمہارے درمیان میں زندگی گزاری ہے. پھر مقدس پولس 10ویں باب کے اندر کیا کہتا ہے؟ میں پولس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم سے دلیر ہوں, مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں, بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں, جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں, اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے. کیا بات ہے مقدس پولس رسول جو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں. اب اسی کے ساتھ اب 13ویں آیت پہ آ جائے. پولس کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے, جس میں تم بھی آگے ہو, کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا, بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے. اور ہم اندازہ سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے, لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑھیں, تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشخبری پہنچا دے, نہ کہ غیر کے علاقہ میں بنی ہوئی چیزوں پر. غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. آمین. تو مقدس پولس کا فخر ہمیں کس میں نظر آ رہا ہے؟ خداوند پہ. میں نے شروع میں بتایا دکھوں, تکلیفوں, مصیبتوں اور پریشانیوں میں خدا کا ساتھ اور اس پر بھروسہ. اب مقدس پولس رسول کے اس پہلے حصہ کے اندر جب وہ دلیری کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے, وہ لوگوں کو خوشخبری کی طرف بلاتا ہے, جہاں پر بہت سارے لوگ اپنی تعلیمیں دے رہے ہیں, یہودیت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پولس جانتا ہے میرا فخر خدا ہے. اور مقدس پولس جب اس بات کو جانتا ہے کہ میرا فخر خدا ہے تو وہ خدا کے ساتھ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے. اور جب وہ خدا کے ساتھ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے تو وہ بڑی دلیرانہ طریقے سے اوپن ریبیوک بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو کلیسیا کو بگاڑنے کی کیا کر رہے تھے جی؟ کوشش کر رہے. اور ہمیں نظر آتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ ملاقات ہوتی ہوگی, ضرور ہوتی ہوگی, لیکن بھائی اور بہنوں میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, جس کے پاس بائبل ہے اس کے پاس ہی اپنی مسیحی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا یہی ایک رستہ ہے. اور جو بائبل پڑھنے والا شخص ہے اس کی زندگی سے پتہ لگتا ہے. لیکن کچھ لوگ بائبل کو شیطانوں کی طرح بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ کیسے؟ صرف
हमने डिबेट जीतने के लिए चंद एक बातें और चंद एक आयतें याद की होती हैं अपने मतलब की, और उन्हीं को हम दोहरा करके सिर्फ दूसरे को नीचा। एक बात याद रखिए, खुदा का कलाम जो है वो पत्थर नहीं है जिसको आप लोगों को मारें जिससे। खुदा का कलाम जिंदगी की रोटी है जिसके वसीला से बदन की क्या होती है जी, तरक्की होती है। खुदा के कलाम को जिंदगी की रोटी की तरह अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी और दूसरों की रूहानी तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कीजिए, और अपनी हलीमी को कायम रखिए। ये ज़रूरी बात है, हमें समझने की ज़रूरत है। आइए अब हम दूसरे हिस्सा की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ पर मुकद्दस पौलुस अपनी सफरिंग के बारे में बताता है। तो मैं 21वें आयत से पढ़ूंगा। पौलुस कहता है, मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली है? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर। अब यहाँ पर जो इब्रानी, इसराइली, अब्राहम की नस्ल से, ये ही वो लोग थे जुडाइजर्स जो कि उन लोगों के दरमियान में जो मसीहत को यहूदियत बनाने की कोशिश कर रहे थे और खुशखबरी के पैगाम को बिगाड़ रहे थे। वो कहते थे कि नंबर 1, ठीक है मसीह है, लेकिन उन तमाम यहूदी रसूम व रवाज को भी उसी तौर से करना है, क्योंकि उन्हीं यहूदी रसूम व रवाज के वसीला से हमारी क्या होगी जी, हकीकी मखलसी और आज़ादी होगी और हकीकी निजात होगी। यही मसला उन कलीसियाओं के अंदर जो था वो चल रहा था। लेकिन मुकद्दस पौलुस कहता है तुम लोग इस बात को, मेरा ये कहना जिल्लत के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस बात में कोई दलेर है, कहता है हम उनसे भी बढ़ करके दलेर हैं। क्योंकि अगर आप पौलुस के खतूत को भी पढ़ें, पौलुस जिस तरीके से अपनी कॉलिंग का, अपने रसूल होने की बुलाहट का हर जगह दिफा करता है। उसके खत का शुरू ही क्या कैसे होता है, मैं पौलुस जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं, उस फजल और इत्मीनान की तुम्हें दावत देता हूं। अब आप जितने भी खतूत पढ़ लें, तमाम के अंदर मुकद्दस पौलुस अपने रसूल होने की उस कॉलिंग को डिफेंड करता है। और जब भी वो अपना इंट्रो इस तरीके से करवाता है तो मुकद्दस पौलुस कहता है मैं खुदा की तरफ से चुना हुआ हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं हूं। और मुकद्दस पौलुस के रसूल होने की जो गवाही है वो हमें दूसरे शागिर्द भी देते हुए क्या है जी, नजर आते हैं। तो जब मुकद्दस पौलुस कहता है तुम उन लोगों की तरफ देख रहे हो, ठीक है मान लेते हैं, कहता है कि क्या वही इब्रानी है? मैं भी। क्या वही इसराइली है? पौलुस कहता है मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से है? कहता है मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादा तर। अब इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत सीक्वेंस हमें नजर आता है, इब्रानी, इसराइली, अब्राहम की नस्ल और मसीह। तो हमें ये रिवर्स में जाता हुआ नजर आ रहा है और अल्टीमेट खुदा के उस बड़े कवनेंट की तरफ इशारा करता है जिस कवनेंट का वादा खुदावंद ने यीशु मसीह के अंदर किया था। और वो क्या था कि अब्रानी, ठीक है, क्योंकि वो अब्रानी ज़ुबान बोलते थे और वो यहूदा की कबीला यहूदियों में से थे, ठीक है। फिर बनी इसराइली, इसराइली किसकी नस्ल में से थे, किसके साथ वादा किया गया था? अब्राहम के साथ वादा किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा वादा जो खुदा ने किया था कि मैं तुम्हें एक निजात दहिंदा दूंगा, और वो निजात दहिंदा कौन है? यीशु मसीह। तो जब हम यीशु मसीह में हैं तो फिर हम यीशु मसीह के खादिम हैं। और इस बात को आप याद रखिए कि हम अब शरीयत के गुलाम नहीं हैं। पहले हम जो कुछ भी थे अब हम मसीह में हैं, बस। और मुकद्दस पौलुस का कहता है, और बेशक वो लोग जो जुडाइजर्स थे वो भी मसीह को मानते थे, लेकिन यहूदियत को क्रिश्चियनिटी के अंदर डालते थे। बिल्कुल इसी तरह से मुकद्दस पौलुस कहता है कि हम मसीह के क्या हैं? खादिम हैं। कहते हैं वो अपने आप को मसीह के खादिम भी कहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना दीवानगी है। दीवानगी जो है वो मोहब्बत की एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो मरने की हद तक मोहब्बत रखता है। तो मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं
ان سے زیادہ ہی مسیح کا خادم ہوں۔ لیکن اس کا یہ فخر کیوں ہے؟ اس کا یہ فخر اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ کو اپنی مصیبتوں کے اندر دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے، پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے خدا کے اوپر فخر بھی کرتا ہے۔ کہتا ہے میں خدا کا، مسیح کا خادم زیادہ تر کیوں ہوں؟ کہتا ہے میں محنتوں میں زیادہ ہوں، میں نے زیادہ محنت کی۔ اب کچھ لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ بڑا عجیب قسم کا فخر ہے کہ خدا علی چلو کم کر دیتے ہوں، گن گن کے بخانڈے، اے دیکھو میں اے بھی کیتا، میں اے بھی کیتا، میں اے بھی کیتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ شروع ہی سے پولس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے رسول ہونے کا دفاع کرتا رہا ہے، اور وہ بتاتا رہا ہے کہ میں خدا کا چنا ہوا کیا ہوں جی؟ رسول ہوں۔ اور جب وہ خدا کا چنا ہوا رسول ہوں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا تھا، کہا تھا اعمال کی کتاب کے اندر کہ میں اس کو بتا دوں گا کہ اس کو میرے نام کی خاطر کیا کیا دکھ سہنے پڑیں گے۔ اور مقدس پولس نے ان باتوں کو یاد کروا کر کے مسیح کے ان الفاظ کی بھی جہاں پر ایک وہ کر رہا ہے، تصویر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس نے مسیح کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور وہ خدا کے اوپر ہی بھروسہ کرتا تھا۔ اسی لیے جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو وہ اس بات کے اوپر مطمئن ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا واقف ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کی سفرنگ بھی تھی تو وہ صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے تھی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں محنتوں میں زیادہ ہوں، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کام 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنتوں اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا۔ جہاں تک ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مقدس پولس رسول یسوع مسیح کے نام کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ پولس رسول کا ذاتی انٹرسٹ کیا تھا؟ پولس رسول ایک اچھا شہری تھا، یہودی نیشنل، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم کا رومن نیشنل بھی، ڈوئل نیشنلٹی تھی اس کے پاس، ٹیکس وغیرہ بھی پے کرتا تھا، سب کچھ تھا۔ اگر ایک عام شہری کے طور پر جیسے ہم لوگ بڑی سکون کے ساتھ کرسیوں کے بیٹھ کے اپنے ایک عام شہری کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، پولس بھی ایسے زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ جو اس لسٹ کے اندر ہمیں نظر آیا ہے، قید میں بھی گیا، کوڑے بھی کھائے، بینت لگے، موت کے خطروں میں بھی پڑا، سنسار بھی کیا گیا، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خوشخبری کی منادی کرتا تھا۔ اور بہت مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہا ہے، دریا میں طوفان آ گیا اور پھٹوں کے اوپر بیٹھ کر کے وہ ایک ساحل کے پاس پہنچے، اور ساحل کے پاس بھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور ایک سانپ جو ہے پولس کے ہاتھ کے اوپر آ کر کے وہ گول بیٹھ جاتا ہے اور اس کو وہ آگ کے اندر جھٹکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یونانی دیوتا ہے، اور لوگ اس کے، لیکن اس جہاز کے ٹوٹنے میں بڑی مشکل سے وہ لوگ کسی ساحل پہ پہنچتے ہیں، پولس وہاں پر بھی منادی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب پڑھیے، آپ کو پتہ لگے گا خدا سچویشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ خدا ہمیں دکھ کی حالت میں سے گزار کر کے الٹیمیٹلی خوشخبری کے لیے اپنا رستہ نکالنا جانتا ہے، اور خدا ضرور نکالے گا۔ اور خدا نے پولس کو خوشخبری کے لیے چنا تھا، تو جہاز توڑ کے بھی خدا نے جن لوگوں کو خوشخبری سنوانی تھی، خدا نے ان لوگوں تک خوشخبری کا پیغام پہنچوایا۔ لیکن پولس یہ سب کچھ کس لیے سہ رہا تھا؟ صرف اور صرف خوشخبری کی خاطر۔ اگر وہ آپ کی اور میری طرح ہوتا کہ خاموشی سے اپنے گھروں اور اپنی سیٹوں کے اوپر اور اپنے کمروں کے اندر ایک آرام دہ زندگی گزارے، تو شاید وہ بھی بغیر مار کھائے، بغیر بینت لگے آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے پولس نے یہ سب کچھ خوشخبری کی منادی کی خاطر کیا، اور پولس اس جگہ پر یہ بات انہیں کیوں دہرا رہا ہے؟ وہ اس لیے دہرا رہا ہے، میں وہی رسول ہوں جو تمہارے درمیان میں آیا تھا اور جس کو تم نے قبول بھی کیا تھا، اور آج چند ایک نئے لوگ آئے ہیں اور تم ان کے پیچھے لگ گئے ہو۔
और उनकी तालीम के पीछे भाग रहे हो, उनके पीछे जा रहे हो। पौलुस कहता है मैं ज्यादातर हूं, मैंने ये सब कुछ जो कुछ भी किया है खुशखबरी की खातिर किया है। फिर आप गलतियों की आयत को लाएं कि उस खुशखबरी के सिवा जो मैंने तुम्हें सुनाई है कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो क्या हो जी? मलाउन। क्योंकि खुशखबरी के ऊपर मुकद्दस पौलुस रसूल का जो स्टांस है और जैसे उसने अपनी जिंदगी गुजारी, खूबसूरत तरीन जिंदगी। बहुत मर्तबा मैं आप लोगों को एक बात बता, बहुत मर्तबा लोग कहते हैं आप लोगों के सरमन्स तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। हमें पता है खुशखबरी एक ही जैसी है, क्योंकि खुशखबरी के अंदर बिगाड़ नहीं है। और अगर सरमन जो है हमारा खुशखबरी के साथ जाकर के लिंक अप नहीं होता तो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि खुशखबरी में हम उम्मीद को पाते हैं। पौलुस रसूल एक ही तरह की खुशखबरी हर जगह पर सुनाता था। खुशखबरी बिगाड़ कर नहीं सुनाता था। हाँ, अब तरीका, अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दूं, कुछ लोगों के ज़हन के अंदर कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी थॉट बनेगी। क्या मतलब इसका? पहली चीज़, टेक्स्ट के साथ आपको फेथफुल रहना है। अब हम पिछले मेरे ख्याल में 4 से 5 महीनों से लगातार तकरीबन सफरिंग के ऊपर ही सरमन सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन सरमन है ही सफरिंग के ऊपर। टेक्स्ट ये कह रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट से कुछ और बुलवा दूं? कलाम ही उसके ऊपर है। और सफरिंग के ऊपर वो क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि पौलुस उन दुखों में से गुजरा है और ये दुख उसके ऊपर खुशखबरी की मुनादी की खातिर है। और खुशखबरी इतनी आसान है कि एक छोटा सा बच्चा, चार्ल्स हॉज कहता है खुशखबरी इतनी आसान है कि एक छोटा सा बच्चा भी उसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है। लेकिन खुशखबरी इतनी ही मुश्किल है कि बड़े से बड़े थियोलॉजियंस भी अपने दिमाग और अपने इल्म की किताबें रख करके बैठ जाएं तो खुशखबरी की जो लामहदूद ताकत और कुदरत और जलाल है उसको समझ नहीं सकते। तो आपको अगर खुशखबरी बार बार सुनाई जाती है तो वो इसलिए है, और आपको इस चीज़ में फ़ख्र लेने की ज़रूरत है कि खुशखबरी ही हमारी ज़रूरत है। मार्टिन लूथर ने ऐसे नहीं कहा कि हमें हर रोज़ अपने आप को खुशखबरी याद करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर रोज़ उसको भूल जाते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल खुशखबरी ही के वसीला से, खुशखबरी पौलुस की पहचान ही खुशखबरी है। कहता है मैं उस खुशखबरी का रसूल हूँ जो खुदावंद ने मुझे दे दी है, मैं उसी खुशखबरी का मुनाद हूँ। फिर कहता है मैंने उसी खुशखबरी के वसीला से ये सब कुछ कहा। कहता है वो अपने आप को रसूल कहते हैं, कहते हैं मैं भी उसका रसूल हूँ, मैं उसका खादिम हूँ, बल्कि ज़्यादातर हूँ। क्यों ज़्यादा हूँ? क्योंकि ये देखो खुशखबरी की खातिर मैंने ये सब कुछ सहा है, मैंने ये सब कुछ किया है। खुशखबरी की मुनादी हमें समझने की ज़रूरत है कि एक ईमानदार के लिए सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज है। क्यों हाईएस्ट प्रिविलेज है? आपको अपनी सबसे पहली ये हाईएस्ट प्रिविलेज खुशखबरी की मुनादी आपके लिए इस तरीके से हवाला निकालिए जरा। पहला पत्रस, उसका पहला ही बाब, वो क्या कहता है? पत्रस की तरफ से, उसकी पहली ऐसे पढ़ो, पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कुप्पदुकिया, आसिया और बिथुनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमंबरदार होने और यीशु मसीह के खून के छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता है। अब मुकद्दस पत्रस जो है वो ईमानदारों को क्या लिख रहा है जी? खत लिख रहा है। लेकिन खत लिखते हुए ईमानदारों को किस मोहब्बत के साथ वो मुखातिब कर रहा है? उसी मोहब्बत के साथ जिस मोहब्बत के साथ खुदा ने अपनी डिवाइन काउंसिल के अंदर और खुदा ने बनाए आलम के पेशतर अपनी सॉवरेन विल के अंदर अपने लोगों को चुना था। और उन चुने हुए लोगों को वो क्या कहता है? और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमंबरदार होने और यीशु मसीह का खून के छिड़के जाने के लिए बरगुजीदा हुए हैं। बरगुजीदा हुए हैं। पौलुस पत्रस बरगुजीदा लोगों को कैसे बुला रहा है कि तुम चुने हुए लोग हो और तुम्हें यीशु मसीह के खून के छिड़के जाने के वसीला से तुम पाक ठहरे और अलग हुए हो और तुम फरमंबरदारी के लिए बुलाए गए हो। आप और मैं फरमंबरदारी के लिए बुलाए गए हैं। किस चीज की फरमंबरदारी के लिए? खुशखबरी की मुनादी और खुशखबरी के दिफा और खुशखबरी के ऊपर स्टैंड लेने की खातिर हम बुलाए गए हैं कि हम फेथफुल सर्वेंट्स ऑफ
गॉस्पल हो। हम वफादार गुलामों की तरह, खादिमों की तरह उसकी खुशखबरी की क्या करें जी? मुनादी करें। फिर चाहे सफरिंग ही क्यों ना, फिर चाहे आप में से उठ करके कोई गलत क्यों ना कहना शुरू हो जाए, फिर चाहे कोड़े लगे, बैंत लगे, जो कुछ भी लगे, आपके दिल की चाहत और मोहब्बत यही होनी चाहिए कि ये शख्स भी मसीह के क्या आ जाए? करीब आ जाए। और वो एक एंकर जिसके ऊपर आपके जहाज का किनारा जो है, आपका जहाज किनारे के ऊपर लगेगा, वो यीशु मसीह और उसकी खुशखबरी है। आपके जानों का जो पुश्ता है वो यीशु मसीह है। आपको उसको समझने की जरूरत है। खुदा के बड़ाई की, खुदा के जलाल की, खुदा की सॉवरेनिटी की तरफ गौर कीजिए। और मैं आपको सच कहता हूं कि पौलुस जो ये सब कुछ बातें बता रहा है, ये इसीलिए बता रहा है, उसके दिल के अंदर वो जो ज़ील है। खुशखबरी कभी भी बगैर ज़ील के आप नहीं सुना सकते। चाहत होनी चाहिए ना, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं इसके वसीला से बचाया गया हूं, मैं इसकी मुनादी करूंगा। और इस जगह के ऊपर पौलुस उसी खुशखबरी का दिफा करता हुआ भी हमें नजर आ रहा है जिसको लोग बिगाड़ने की क्या कर रहे थे जी? कोशिश कर रहे थे। और उसका दिफा कैसा है? बहुत खूबसूरत दिफा है। वो अपनी सफरिंग से भी बताता है कि मैं वही खुशखबरी जो तुम्हारे दरमियान में सुनाई है, उसकी खातिर मैं इन दुखों और तकलीफों में से भी क्या हुआ हूं जी? गुजरा हूं। आगे बढ़ते हैं। मेहनत में भी उसने किया, मुशक्कत भी की है, 12 बेदारी, बहुत मरतबा जागना भी पड़ा है, भूख और प्यास की मुसीबत में से भी गुजरा है वो। किसकी खातिर? खुशखबरी की खातिर। क्या खुशखबरी को हम इतना बड़ा और इतना जलाली समझते हैं कि अगर उसकी खातिर हमें भूख और प्यास की मुसीबत भी बर्दाश्त करनी पड़े तो खुशखबरी इतनी बड़ी है कि बेशक मैं भूखा मर जाऊं, खुशखबरी फिर भी बहुत बड़ी है। कहते हैं 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज दुबाती है। कलीसियाओं की फिक्र उसको क्यों हर रोज आकर के दुबाती है? क्योंकि वो खुशखबरी से मोहब्बत करता है, और कलीसिया बनती ही तब है जब खुशखबरी के वसीला से जिंदगियों के अंदर काम होता है। और खुदा के इल्म साबिक में जो लोग थे, मुकद्दसीन लोग हैं, जब वो दुनिया से अलग होकर के खुदा की खातिर अलग हो जाते हैं, तो वो क्यों कहते हैं मुझे खुशखबरी, कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदब आती है? क्योंकि उसने खुशखबरी की मुनादी की थी, वो उस डॉक्ट्रिन की, वो उस अच्छे बीज की हिफाजत भी करता था, वो एल्डर्स को अपॉइंट करता था। ध्यान रखो, इनकी मदद करो, तिमोथियुस और तीतस के खतूत पढ़ लें, इस कलीसिया को आगे बढ़ाओ, ये कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया ईमान में आगे बढ़े। जहां पर भी मुकद्दस पौलुस कलीसिया को खत लिखता है, कॉन्टेक्स्ट को सामने रखिए। कलीसिया को ईमान से पीछे हटता हुआ देख करके उसको तकलीफ भी होती होगी कि ये कैसे और तरह की खुशखबरी के पीछे जा सकते हैं। यही दर्द आज हमारे अंदर भी है। अगर हम आपको कहते हैं कि चर्च जल्दी आए, अगर हम आपको कहते हैं कि खुदा के कलाम को पढ़ें, अगर हम आपको कहते हैं कि बाइबल स्टडीज पे आए, अगर हम आपको कहते हैं कि प्रेयर मीटिंग्स पे आए, अगर हम आपको इकट्ठा करते हैं, तो उसके पीछे एक ही मकसद है कि हम लोग आप लोगों की फिक्र करते हैं कि आप लोग मसीह के साथ जुड़े रहे और उसके जलाल के लीजिए, उसके नाम को मुबारक है, क्योंकि खुदा के लोगों को खुदा के लोगों की फिक्र जरूर करनी है। क्योंकि कलाम ये कहता है, कलाम के अंदर पौलुस ने ये नमूना रखा है, उसको बोझ ना समझे अपने लिए, अपनी चाहतों के ऊपर गौर कीजिए, अपने ईमान की बुनियादों के अंदर स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत इसी में है कि हम एक दूसरे को मसीह की खातिर, खुशखबरी की खातिर इनकरेज करें। अनटिल एंड अनलेस आप मर नहीं रहे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि खुदा के बारे में जानना मेरे लिए सबसे बड़े प्रिविलेज की बात है। खुदा की मुनादी करना मेरे लिए प्रिविलेज की बात है, चाहे मैं किसी भी लेवल पे क्यों ना करूं। पौलुस जहाज टूटा है, फट्टे के ऊपर चल करके साहिल तक पहुंचा है, फिर भी मुनादी कर रहा है। उसको ये फिक्र नहीं है, ठंड है, आग के आगे बेशक बैठे, फिर भी लोगों के दरमियान में मुनादी उसने शुरू कर दिया। कैसी बड़ी मोहब्बत, बैंत उसको लगे हुए हैं, लेकिन सिलास के साथ मिल करके वो उस कैदखाना के अंदर प्रस्तिश कर रहा है। कौन तकलीफ की हालत में प्रस्तिश करना चाहता है? ये वो खूबसूरत बात है जिसको आज के ईमानदारों को समझने की जरूरत है, हमें हसास होने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं? आपकी प्रस्तिश आपके हालातों के ऊपर
इन्हिसार नहीं करनी चाहिए। बहुत मर्तबा बहुत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर नाशुक्री होती है और हालात को देख करके उनकी प्रस्तिश उनके अंदर से निकलती है। आपकी प्रस्तिश आपकी ग्लोरियस खुदा को देखने के वसीला से निकलनी चाहिए कि आपका खुदा कितना जलाली है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मुकद्दस पौलुस खुशखबरी के खुदा को देखता है और उस खुशखबरी में वो उस खुदा के जलाल को और उसके काम को दिखाता है कि ये है तुम्हारे लिए खुशखबरी, इसके ऊपर कायम रहो। मैं भी इसी का मुनाद हूं। लोग इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी फिक्र करता हूं कि खुशखबरी के वसीला से तुम लोग और खुशखबरी में तुम लोग कायम रहो, क्योंकि कलीसियाओं की फिक्र मुझे आद उबाती है। फिर वो क्या कहता है, किसी की कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुताल्लिक है। क्यों? फिलिपियों में मुकद्दस पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर होता हूं तो वो जोरावर होता है। आमीन। पौलुस क्या कहता है कि जो मुझे कुव्वत और कुदरत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ। वहां पर भी कुछ ऐसी हालत है। निकालिए जरा फिलिपियों का खत। मैं 5 से 7 मिनट और आपके लूंगा, फिर हम इसको एंड करेंगे। टेक्स्ट काफी लंबा है। फिलिपियों का खत, उसका आखिरी बाब, 4 बाब की 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। पहली आयत, पहले 4 बाब की 4थी आयत हम पढ़ते हैं। जरा गौर कीजिएगा क्या लिखा है। पौलुस कहता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि पौलुस कैद के अंदर है, जेल में बंद है, लेकिन वो क्या कहता है, खुदावंद में हर वक्त क्या रहो जी, दुखों, तकलीफों, मुसीबतों और परेशानियों में खुदा का साथ और हमारा उसके ऊपर एतकाद। पौलुस अपनी सफरिंग्स के अंदर भी खुदा के साथ को अपने साथ महसूस करता है और कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुदावंद में खुश रहो, और वो खुदावंद के ऊपर एतकाद भी करता है। अब 10वीं आयत के ऊपर जरा आ जाइए। क्या कहता है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी हूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने सेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें सब कुछ। और फिर वो कहता है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। फिर वो कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुदावंद में खुश रहो, क्योंकि जिंदगी के अंदर सफरिंग में से भी गुजरने की ताकत आपको खुदा ही की तरफ से मिलेगी। और पौलुस उन सफरिंग्स में भी खुदा में खुश है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा अपना ग्लोरियस मकसद, अपना जलाली मकसद उन सफरिंग के वसीला से भी जाहिर करना और सामने लेकर के आना जानता है कि कैसे वो अपने नाम को जलाल दिलवाएगा। आप में से बहुत से लोग बहुत से अपने अपने लेवल पे किसी ना किसी दुख में से गुजरे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने दुखों को छोड़ करके खुदा की वफादारी के ऊपर देखें। मैं चाहूंगा कि आप देखें कि उसने आपकी जिंदगी के अंदर आपको अलग कर करके उन दुखों में से भी बचा करके अपने नाम को कैसे जलाल दिलवाया है। उसके जलाली काम की तरफ देखें। तो अब आपका काम क्या बनता है? एक ऐसी कलीसिया बनना जो कि खुशखबरी के ऊपर कायम रहे। ऐसा ना हो कि बाहर से कोई भेड़ की भेस में भेड़िया आ जाए और आपको तितर बितर करना शुरू। ऐसे नहीं होगा कि वो पहला एक भेड़िए नू मारेगा, ओदी खाल लाएगा, खाल अपने उत्ते पाएगा। एक अंकल है वो कहते हैं, और मैंने रीछ की खाल अपने ऊपर पहन ली और फिर मैं एक छोटा रीछ बन के वहां पर बैठा रहा। मैंने, ऐसा नहीं होता। भेड़ों के रूप में भेड़िए आएंगे, ऐसे नहीं होता। वो कहीं से भी आपके दरमियान में आके आपके थॉट प्रोसेसिंग को वो बदलने की कोशिश करते हैं। मुकद्दस पौलुस का कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है और ऐसे अज के किलों को ढा देने के काबिल है। कहते हैं हम हर एक ख्याल को ताबे करके मसीह का फरमानबरदार बना देते हैं। लोग आपकी सोच के साथ खेलते हैं। जैसे कि लोग आपको क्या कहेंगे, ओ जी तुहाडा चर्च, ओ तुहाडा चर्च ते इंज, तुहाडा चर्च इंज। लोग आपकी थॉट प्रोसेसिंग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं।
बहुत सारी कमी है, सब कुछ है. Don't look for the church closest to your home. Look for the church closest to the Bible. खुदा का खादिम पॉल वॉशर कहता है उस कलीसिया की तलाश ना करें जो कि आपके घर के करीब है, उस कलीसिया की तरफ देखें जो कलाम के करीब है. और 31 हमने आयत पढ़ ली है. 31वीं आयत पे आ जाए. खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप जिसकी अब तक हमद हो जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता. दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह अरितास की तरफ से था मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पैरा बिठा रखा था. फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से. पौलुस कहता है ये आपको वाकया ईमान 9 बाब 23 से 25वीं आयत के अंदर मिल जाएगा जहाँ पर दमिश्क के अंदर ये सब कुछ हुआ. कहता है लेकिन मैं बच गया, टोकरे से नीचे उतारा गया. लेकिन उस बच जाने में भी खुदा का जलाल है, उसके पकड़े जाने में भी खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है जब वो बादशाह के सामने खड़ा होकर के मुनादी करता है. अग्रिप्पा बादशाह कहता है क्या तू मुझे एक ही दिन में मसीह कर देना चाहता है? क्योंकि खूबसूरत बात भाइयों जो देखने की है खुदा के साथ को महसूस करना. और आप जब खुशखबरी की मुनादी के लिए भी निकलते हैं, मैं एक ही बात आज आपको इंकरेज करना चाहूंगा, मैं आपके दिल से बात कर रहा हूं, ये मेरी तरफ देखिए, अब छोड़ दे, नीचे देखना छोड़े. आपके दिल में ये एहसास होना चाहिए खुदा का साथ मेरे साथ है. लोग आपको पकड़ के मारेंगे भी, आपके दिल में ये एहसास एक सेकंड के लिए भी जुदा नहीं होना चाहिए कि खुदा मेरे साथ है. लोग आपको आपकी जान से मार दे, एक लम्हे के लिए भी आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरा खुदा छोटा है कि वो मुझे बचा नहीं सकेगा. आपका खुदा बड़ा है जिसने पहले से ही आपको बचा लिया है. आप मर भी जाएंगे तो आप अब्दी जलाल में उस जिंदा खुदा के साथ होंगे. और ये बात याद रखिए कि आपकी जो दम भर की हल्की सी मुसीबत है ये आपके लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है. और मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशखबरी के ऊपर उसका स्टैंड था, खुशखबरी की वो मुनादी करता था, खुशखबरी का ही वो दिफा करता था. दुखों तकलीफ़ों मुसीबतों परेशानियों में भी वो खुदा के साथ क्या रहा जी, वफादार रहा. और कलीसिया जो बिगाड़ की तरफ जाती थी उनको वो बताता भी है कि खुशखबरी ही पर हमें क्या रहना है जी, कायम रहना है, क्योंकि यही हमारी बुनियाद है. तो दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में खुदा का साथ ईमानदारों के साथ है, लेकिन ईमानदार का भरोसा खुदा पे करना ये बड़ी बात है. पौलुस खूबसूरत एग्जाम्पल है जो कि अपनी सफरिंग के वसीला से भी, अब आप सफरिंग की मिसालें देख लें, ये भी एक बहुत बड़ी सफरिंग है कि आपके ही भाई उठ करके आपको गलत कहना शुरू कर दें. ये भी एक सफरिंग है कि आप बार बार अपना दिफा कर रहे हैं लेकिन लोग फिर भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे. लेकिन मुकद्दस पौलुस फिर भी खुशखबरी की खातिर फर्म रहा, कायम रहा, मजबूत रहा. आखिरी हवाला निकालिए, अपने कदमों पर खड़े होइए. 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है. क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं. क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं. खुशखबरी के साथ वफादार रहें, खुशखबरी के ऊपर स्टैंड करें. खुशखबरी की खातिर आपको चाहे दुख ही क्यों ना सहना पड़े, एक बात याद रखिए कि आपकी दम भर की हल्की सी मुसीबत आपके लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है. और ज़ाहिरी चीज़ों पर नहीं बल्कि उन चीज़ों के ऊपर गौर करें जो खुदा ने आपके लिए अब्दी ज़िंदगी के अंदर रख छोड़ी है. इसीलिए पौलुस आदमी से नहीं डरता था, वो खुदा से डरता था, खुदा पर भरोसा करता था. पौलुस कहता है अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करने वाला होता तो खुदा का खादिम ना होता.
पौलुस का फ़ख्र मसीह और उसकी सलीब पर था। आखिर में जॉर्ज विटफील्ड खुदा का खादिम कहता है, हाउ स्वीट इज रेस्ट आफ्टर फटीग, हाउ स्वीट विल हेवन बी व्हेन आवर जर्नी इज एंडेड। कहता है कि आराम, सख्त मेहनत के बाद आराम करना आपको कितना मीठा मालूम होता है। कहता है कितनी ही मीठी और खूबसूरत जन्नत होगी जिस दिन हमारा ये तल्ख और सख्त सफ़र इस ज़मीन के ऊपर ख़त्म होगा। भाई और बहनों, खुशखबरी के साथ वफादार रहें। कलीसिया का पार्ट होना ये एक प्रिविलेज्ड बात है। मसीही कलीसिया का हिस्सा होना, उस कलीसिया में खुशखबरी के साथ अपने ईमानदार बहन भाइयों के साथ जुड़े रहना, जो लोग कमज़ोर हों उनको फिर से उठा खड़ा करना, और खुदा के नाम की खातिर दुख तकलीफ मुसीबत ही बर्दाश्त क्यों ना करनी पड़े। कुछ लोगों ने कलीसिया को उस पे भी छोड़ा था। जब पुलिस आई थी चर्च के अंदर तो उस से छोड़ करके भाग गए थे। क्या होगा, ओहो, सब कुछ, सब बातें याद है और ताज़ा है। खुदा बड़ा है, जिसको खुदा ने कायम रखना है कायम रखना है। पुलिस के आने से लोग डर जाते हैं, बातें मसीह की खातिर जीने मरने की करते हैं। पौलुस की तरफ देखिए, कायम रहें, खुशखबरी में बढ़ें, उसके जलाल की तरफ देखें, क्योंकि आने वाला जलाल खुदा के वादों की तरह रोशन है। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ